Okay, Assalamualaikum everyone. We are live. How is everyone? I'll again wait for a few minutes so that everybody could join. Um, okay, so let me start. Um, I hope everybody is fine. The weather is terrible, and with everybody fasting, I can understand it must be difficult. But thank you for taking out time and watching this either live or after whenever you get time. It means a lot to us, for me, my team, my panel, because this is what we are doing is for you guys. Today's session, I'll start with something that I discussed in my previous live session with Lorianne. If you haven't watched it, please do watch it. It was an excellent live session on self-regulation. She said a word called flossom, which by that she meant that accepting ourselves with our flaws. So she said that word, and I loved that. So accepting ourselves with our strengths, with our weaknesses, is what is the main target. Unless and until we don't accept ourselves, we are not able to accept others. This is where the struggle begins, especially in this culture. It is all around the world, but in this culture, why? Because we tend to get insecure about our weaknesses, and instead of working on that, we try to project them on others. I'm not blaming others. This is something that becomes a norm. This is something that we do start doing it unconsciously. So my and I think uh, today's session is with my panelist Faria Afzal, and she is, I think, perfectly. She fits into perfect definition of flossom. But how can we accept ourselves with our weaknesses? I admire her so much because what she has been through, her struggle, and the best part about it is not just struggling with what she did, but being open about it. Because I have tried myself this, and I feel like that when you are insecure about something and you keep hiding it, then and there it becomes your weakness, and then you are scared about it. You become very defensive about it. But when you're open to the world, then you wear it as your cape, you wear it as your strength. So let me give a little bit introduction about Faria. Faria is a clinical psychologist, but I wanted to talk about, because she will give her introduction, but I wanted to talk about her struggles. When she was 6 years old, she developed speech issues, and then later she found out that she has a defect in the Broca's region of her brain. Broca's region is in the frontal lobe of our brain, and the function of Broca's region or area is to develop speech for controlling the motor functions. And if someone has a kind of a defect or small defect in that area, they might understand the word, but putting them together in a speech becomes a little challenging for them. uh, After that, she went into speech therapy. She tried different ways to cope with it. But the best part, what I admire her for, that not just she worked on herself, she became a psychologist. She started studying psychology. She became a psychologist so that she can help others who are struggling with what she struggled with. And I feel like people like me, Faria, and I think all of my panelists, we are in this position because we have struggled. We know we can empathize because we have been through that pain. So I think I have talked a lot. I will now join Faria in the stream. Hello, Assalamualaikum, Faria. Walaikum salam. How are you, Tuba? I'm fine. How are you, Faria? Thank you for joining me. Shukar. Thanks a lot for having me, Tuba, in this session. No, I am honored. Faria, can you first give your introduction? Hmm. Tuba, actually, I'm a child psychologist और 6 साल से तकरीबन अभी तो 6 साल हो गए तो 6 साल से तो मैं इस तरह की कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं कि जिनको इश्यूज होते हैं
स्लो होते हैं, ठीक है, और वो लिख नहीं सकते, एंजाइटी के साथ होते हैं उनके इशू, ठीक है, स्पीच के साथ होते हैं इशू उनके, और वो लिख नहीं सकते, कुछ सोच नहीं सकते, होता ना, आपस का एक स्ट्रगल होता है उनका उन्हीं के साथ ना। तो मैं उनके साथ जो है काम कर रही हूँ 6 साल से, और ये मैंने सोचा इसीलिए क्योंकि मैं खुद भी जो है शायद इसी चीज से जो है ना उधर चुकी हूँ। ऑब्वियसली आपने ऑलरेडी इतना कुछ कह दिया है, लेकिन फिर भी ये है कि मैंने साइकोलॉजी चूज की, इसीलिए चूज की कि मैं खुद अपनी एंजाइटीज के साथ इतना ज्यादा वो मतलब इतना ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम सुसाइडल होने की कोशिश करते हैं, यार अब तो कुछ भी नहीं है, कोई अपने साथ नहीं रख रहा, कोई मतलब कोई इस तरह से जो है ना बिल्कुल ही आपको अलग कर देते हैं कि आप तो यहाँ हो नहीं, आप एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये चीज आपको ज्यादा फील होती है। Yeah. तो फिर तो मैंने सोचा कि क्यों है ना साइकोलॉजी की हेल्प से इस चीज को मैं जो है ना रिड्यूस करूं, और फिर इसी तरह के जो इश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स के साथ या बच्चों के साथ, तो मैं उनके साथ काम करूं। तो मैं 6 साल से जो है ना इस तरह के जो है ना वो लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ, और रेमेडियल टीचिंग करती हूँ मैं। तो ये है कि ये काफी वो ज्यादा एक होता है ना सेटिस्फाइंग होता है अपने लिए भी कि हाँ आप वाकई अगर एक काम करो, एक अच्छा काम करो, एक अचीवर, एक उतना एक अचीवमेंट की फीलिंग आपको आती है कि हाँ भाई कि मैं इस चीज से निकली, अब हमें खुद इस तरह के लोगों की हेल्प करें। आई एम सो I think, ग्लैड। yeah. And I think this is what the biggest achievement is. I think, Faria, the way you have handled this, and I remember when we were studying and you were my junior, and I used to praise your strength, the way you handled yourself, and and you are so much full of light that I never ever felt that you have struggled so much. And this is what a warrior looks like. And I'm really, really proud that I got to know you, and now I am able to थैंक्स अ work लॉट, with you to help others. थैंक्स अ लॉट तुबा, थैंक यू सो मच, No, थैंक्स अ no. लॉट। Okay, so we shall start the session. Okay, guys, एक चीज that Faria has generously planned some activities that she is going to show us today in the live session. So I will try कि हम लोग जो मैंने questions design किए हैं उसको हम जल्दी cover कर लें, ताकि फरिया को time मिल सके कि वो आप लोगों को बता सके जो design इसने किए हैं activities. So basic से start करते हैं फरिया. What is child psychology and how is this different from any other field? ओके, चाइल्ड साइकोलॉजी बेसिकली आपसे जो चिल्ड्रन होते हैं ना, बच्चे, चाइल्ड साइकोलॉजी ये जो है ना इधर हमारा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। चाइल्ड साइकोलॉजी वो जो है ना अमेरिका और जो है ना इंग्लैंड और इस तरह का Test उधर में का जो है ना ज्यादा. कॉन्सेप्ट है Yeah. जी। हमारे यहाँ ये Hmm. कॉन्सेप्ट शुरू से था ही नहीं तुबा, और मैं अभी तक इतनी हैरान होती हूँ कि पाकिस्तान में चाइल्ड साइकोलॉजी की इतनी वो नीड है, लेकिन फिर भी जो है ना वो लोग इस चीज को अभी तक समझे नहीं है कि Hmm. चाइल्ड साइकोलॉजी बेसिकली है क्या। हम लोगों Hmm. को हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को जो है काफी ज्यादा मतलब वो नीड है कि हम उनकी हेल्प करें। तो Yeah. पाकिस्तान में चाइल्ड साइकोलॉजी का इतना स्कोप ऑनेस्टली नहीं है, ठीक है। तो मैं खुद से भी यही कोशिश कर रही हूँ कि मुझसे इतना हो सकता है इस तरह के स्टूडेंट्स की, और जो है ना बच्चों की, खास तौर पे स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं Yeah. हमारे बिल्कुल. पाकिस्तान बिल्कुल. में, सबसे ज्यादा सफर करते हैं। उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, स्कूल में जो होते हैं, वो सब के मतलब ऑब्वियसली अगर एक बच्चा है, ठीक है, और उसको Hmm. वो लिखना नहीं आ रहा या वो Hmm. हकला रहा है, तो उसके ऊपर हंसना, ठीक है, Hmm. उसको ये कहना कि तो हकला है, एक चीज को वो लेबल करना किसी पे, तो ये Yeah. चीज बहुत ज्यादा जो है ना मतलब हर्टफुल रहती है कि बिल्कुल उसके लिए। बिल्कुल. हर्टफुल क्या है? दिस इज अ ट्रॉमा. ये ट्रॉमा है हम्म, बच्चों के लिए और ये समझते नहीं. और आई ऑब्वियसली थिंक ये वन ऑफ द रीजन ये भी है जो तुमने मेंशन किया ना कि यहाँ स्पेशली स्कोप हम्म, इसलिए कि हम बड़े लोग अगर किसी को बोल देते हैं कि व्हाई डोंट यू सीक अ थेरेपिस्ट और व्हाई डोंट यू सीक अ साइकोलॉजिस्ट, वो बोलते हैं तो क्या हम पागल हैं.
तो अगर यस, किसी के बच्चों को ये बोला जाए तो वो तो और ज्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे। दिस इज ट्रू। और चाइल्ड साइकोलॉजी दूसरी का मतलब हर चीज से अलग इसलिए है क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी इतनी इंटरेस्टिंग है। अगर आप किसी चाइल्ड का जो है कि मतलब इमोशंस, उसकी एंजाइटी और ये सब आप समझने वो लगो, तो आपको खुद को इतना ज्यादा मजा आएगा कि हाँ यार, कि मैं इसकी एक उतना एक छोटा बच्चा होता है, अब वो किसी चीज से वो खुद एक उतना वो सफर कर रहा है, तो वो किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो वो चीजें हमें उसका कंसंट्रेशन, उसका फोकस, हर चीज हमें है ना वो देखनी होती है। तो या चाइल्ड साइकोलॉजी इसीलिए सबसे अलग है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये कि इसमें इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं, कलरिंग की एक्टिविटीज, प्ले की एक्टिविटीज, सब कुछ होता है। तो आपको एक ना और ज्यादा खुद के साथ अच्छा लगता है, उनके साथ भी अच्छा लगता है, तो वो चीज ना वो क्या कहते हैं, रिड्यूस होने में जो है ना हेल्प करती है, या प्रूफ एंड आई करने में ना थिंक वो जो खुद आमना के साथ जब हम मेरा सेशन था, आमना करीमी, उसने भी एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि डेवलपमेंटल स्टेजेस जो होते हैं ना, अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट अगर हम डेवलपमेंटल स्टेजेस में बच्चों की हेल्प कर सकें तो वो बड़े होके जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं वो नहीं होंगी, वो नहीं होंगी। इश्यूज उधर ही रिजॉल्व हो जाएंगे। यस, ट्रू दैट। अब मैं अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं एक केस की, तो मेरा एक स्टूडेंट आता था मेरे पास, वो जो है ना बहुत ज्यादा लाइक उसको जो है ना इशू था, कि उसको ना गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। ही वाज उसमें इतना ज्यादा एग्रेशन था कि वो अपने घर में ना चीजें उठा के यूज टू थ्रो इट, ठीक है। फिर वो अपनी अम्मी के ऊपर थी और ना सबके ऊपर ना चीजें फेंकता था। तो उसकी अम्मी ऑब्वियसली इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि उनको भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो लोग आए तो उसका एग्रेशन बहुत हाई पे था। तो जब ऐसा था कि उसकी खुद की हिस्ट्री हमने समझी, तो मुझे समझ में आया कि ये उसके फादर से जो है ना उसको उसको आया है, कि उसके फादर और ऑब्वियसली शुरू से उसकी अम्मी के ऊपर हाथ उठाना। तो अगर एक चीज आप देख रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप उसी चीज को इमिटेट भी तो करोगे ना। और चिल्ड्रन तो होते ही ऐसे कि वो दे आर इमिटेट तो करते हैं, मोल्ड्स, वो तो कच्चा तो क्ले का लिपस्टिक उठा मोल्ड है। ली, ये आप लगा उनको लिया, हाँ, जैसे मोल्ड करेंगे वो वैसे बिल्कुल मोल्ड हो जाएंगे। बिल्कुल वो वैसे ही मोल्ड होंगे। तो ये बिल्कुल। कुछ इश्यूज तो मैंने उसके एग्रेशन के साथ काफी अच्छा खासा काम किया। अभी तो खैर अल्लाह का शुक्र है, इस बात को 3 साल हो गए, अब तो काफी अच्छा मतलब अपनी इस पे सेट हो गया है। लेकिन जो है फिर भी कि मतलब इस तरह के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। बिल्कुल। फिर ऐसा होता है कि ना स्कूल में भी उसके ना इतने इश्यूज हो रहे थे, ऑब्वियसली एग्रेसिव था, तो हाथ उठाना हर बात पे कि मैं तो इसको जो है ना ऐसा कर दूंगा, हाथ उठाना, चीजें फेंकना, तो वो चीज काफी उसने खुद ने भी इतना सफर किया। समटाइम्स वो इतना रोता था हुआ, आप यकीन करो कि इतना ज्यादा कि मैंने खुद मतलब सफरिंग उसकी वो देखी है। तो इट इज नॉट इजी टू या सफर के मतलब वो पेन होना साथ में, और इतनी बिल्कुल। सी एज में। ही वॉज अराउंड लेकिन 7 पता है ईयर्स हमें ओल्ड। समझने की जरूरत है कि हाँ, हम लोग बच्चों की, हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो बच्चा बिहेव कर रहा है, हम्म, 80 बल्कि 90% दैट्स अ रिएक्शन टू समथिंग. यस That is यस, not an action. That is a reaction. And we need to find out the real trigger, the real action. And then हम यस, लोग फिर उनको कैटेगराइज कर देते हैं. Sometimes बच्चे सुन सुन के ना वैसे हो जाते हैं कि ठीक है अब मैं हाँ, ऐसे ही हूँ, जब मुझे कोई सुनता ही नहीं है, मुझे कोई समझता ही नहीं है. जब हम सही बड़े बात ऐसा है, फील कर सकते हैं तो बच्चे तो कर ही सकते हैं. बच्चे तो कर ही और सकते एक हैं। और सवाल, फरिया, ये क्वेश्चन तो एज अ मदर भी मेरे इतना, मैंने इस बात पे स्ट्रगल किया है और उसके बाद भी मुझसे इतने लोगों ने पूछा है. अगर कोई मदर या पेरेंट्स आते हैं ना अपने बच्चे को लेके कि हमें लगता है कि कोई इशू है, उनके दो कंसर्न होते हैं. या हम्म, तो ये बहुत छोटा है अभी, आई थिंक हम थोड़ा वेट कर लें, या फिर आई हम्म, थिंक अभी इतना बड़ा हो गया है कि अब बेकार है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाना. तो सही बात क्वेश्चन है। ये है कि एज क्या हो सकती है जिसपे रेफर करना बेहतर है. देखो, ये बात है ना, एज तो कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट
है ना इशू इशू इतना आपका है। और ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि 3 साल का भी होता है, वो भी उसका जो गुस्सा होता है या एंग्जाइटी होती है वो ना हमें शो हो रही होती है। 3 साल का बच्चा भी तुबा वो चीज शो करता बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल। किसी भी सूरत शो करता है। लेकिन पेरेंट्स आते हैं, अम्मी आती है, खास तौर पे एक ना ये बात होती है कि आप इसको ना ठीक कर दें कि ये 1 हफ्ते में सही हो जाए। सही हो जाए, अच्छा, सही बात समटाइम्स ये बात भी है। आती है कि आप इसको 1 हफ्ते में सही कर दे। अब हुआ 1 हफ्ते में कोई भी बच्चा या हम अडल्ट भी सही नहीं हो सकते 1 हफ्ते में, तो ठीक है, 1 हफ्ते में तो हमें भी कुछ हो रहा होता है, फ्लू भी हो रहा होता है, वो भी 1 हफ्ते में ठीक नहीं होता। सही तो बात है, सबसे बिल्कुल। पहले तो पेरेंट्स को आप ये चीज समझाना कि मतलब 1 हफ्ते में तो आपका बच्चा सही हो भी नहीं सकता, आपको सब्र करना पड़ेगा, यू नीड टू रिलैक्स। सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तानी और जो है ना सबसे ज्यादा पेरेंट्स तो का मुझे, यही, सॉरी फरिया मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे नहीं कोई बात। सबसे ज्यादा जो अनोइंग लगता है ना, ये वर्ड के सही कर दें। मतलब मेरे मेरे कानों में आवाज ये जाती है कि इसको मेरे हिसाब का कर दें, इसको हाँ वैसा कर दें जो मुझे अच्छा एग्जैक्ट, लगे। ये हाँ चीज मुझे सुनाई देती है। और फिर जब मैं उनको ट्रांसलेट करके तो बताती हूँ ना कि आप अपने बच्चे को ना हम्म नॉर्मल चाहते हैं ना सही चाहते हम्म हैं, आप अपने बच्चे को वैसा चाहते हैं जो आपकी डेफिनेशन में सही है, और क्या पता वो सही नहीं है, सही आपकी बात है, डेफिनेशन ही सही नहीं है फिर। हाँ सही है तो सही है ये सही है, प्रॉब्लम है जो यही पेरेंट्स को, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, इवन बीइंग अ टीचर, मुझे ये चीज बहुत स्ट्रगल होती है ना, क्या अच्छा ठीक है ए ग्रेड आए, ए स्टार कैसे आ सकता है, बी आ गया, ये ए स्टार पे कब आएगा। तो ये जो रिजल्ट्स पे तो कॉन्सेप्ट है बहुत पेरेंट्स, इश्यूज आते हम, या और हम लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख देते हैं उनसे। हैं, वी नीड टू बहुत अंडरस्टैंड बहुत ये चीज बहुत गलत है। अच्छा फरिया, कौन सी टाइप की थेरेपीज हैं जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ऑफर कर सकते हैं? देखो, थेरेपीज तो काफी हो सकती हैं, सीबीटी हो सकती है, ठीक है, और भी काफी हो सकती है, पर मैं खुद एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट 6 साल से प्ले थेरेपी और आर्ट थेरेपी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये क्या होता है, ये उनके खुद के इंटरेस्ट का होता है ना, तो वो काफी ज्यादा एंगेज होके करते हैं एक्टिविटीज, और इससे ये होता है कि उनका ना स्लोली स्लोली वो जो है ना सब कुछ एक होता वो जो है ना इमोशंस होते हैं, एंग्जाइटी होती है या फियर है, ठीक है, अग्रेशन है, तो वो खुद ही रिड्यूस होता है, इसलिए कि उनको ऑब्वियसली उनको तो ये चीज मुझे पता है आर्ट नहीं थेरेपी कि का प्ले सबसे है। अच्छा एस्पेक्ट ये लगता है कि जब हम कर रहे होते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि विदाउट यस, टॉकिंग अबाउट द इश्यूज यू आर रिजॉल्विंग देम। आई थिंक दैट इज व्हाई रिजॉल्विंग, आर्ट थेरेपी एंड हाँ, प्ले थेरेपी जो है ना बच्चों के लिए बहुत इंजॉयबल होती है देन थ्रेटनिंग। रिजॉल्विंग भी होती है, और सेकेंडली कि वो बच्चा अपने आप को किस तरह एक्सप्रेस कर रहा है। अभी ये जो टेक्निक्स है ना, ये मैंने लिखी है, तो तो ये खुद मैंने खुद ये सोच के लिखी है। टेक्निक्स तो इतनी सारी हैं तूबा, इतनी सारी हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन मैंने खुद चूज करके उठाई है कि आज मैं ये टेक्निक सिखाने वाली हूँ कि ताकि जो है ना है ना आप लोग या और भी जो है ना है कि जिनको हेल्प चाहिए अपने बच्चों के लिए, तो वो मुझसे हेल्प ले सके। एंड इस पे इस वक्त मैं मेंबर्स के लिए एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि जी, प्लीज कीप इन माइंड, फरिया ने भी वो वाली थेरेपीज रखी है, थेरेपीज तो नहीं, ऐसी एक्टिविटीज रखी हैं जो थोड़ी टेक्निक्स जनरल रखी हैं, है, क्योंकि जनरल है, हाँ, प्लीज प्लीज कीप इन माइंड स्पेशली पेरेंट्स के, वन फॉर्मूला विल नेवर वर्क फॉर एवरी चाइल्ड। डोंट थिंक कि फरिया ने आज अगर कोई फॉर इंस्टेंस एग्रेशन के लिए बताया है और ये मैंने अप्लाई किया और मेरा बेटा तो और एग्रेसिव हो रहा है, ठीक है। सो दे आर टेक्निक्स जो कि एक तो बच्चे बच्चे से वेरी, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, दूसरा यस, हाउ यू आर डूइंग इट क्रिएट्स अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट एंड डिफरेंस। तो ये चीज ख्याल रखिएगा। तो डोंट जस्ट फील कि ये अगर परिया ने बता दिया 2+2 is 4 तो ये हर बच्चे पे चलेगा, ऐसा नहीं होता। यस, अच्छा उसका जो परिया, है, ये थेरेपी हाँ, क्या होती कौन सी ना आप रिपीट करेंगी, सॉरी। है? प्ले थेरेपी, प्ले थेरेपी। प्ले थेरेपी जो है बेसिकली बच्चों के साथ ना अलग अलग हम टूल्स उठाते हैं, गेम्स रखते हैं, और उसके साथ साथ हम अटेंशन, कंसंट्रेशन, हाइपर एक्टिविटी, एंजाइटी
और जो है अग्रेशन और इन सब के ऊपर जो है ना हम काम करते हैं, ठीक है। ज्यादातर ऐसा होता है कुबा के चिल्ड्रन का जो इश्यूज होते हैं ना, तो वो ना हाइपर एक्टिविटी होता है, अग्रेशन होता है, एंजाइटी होती है और जो ना इस तरह के ही इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो प्ले थेरेपी काफी इफेक्टिव है इन चीजों के लिए कि ताकि वो इस चीज को जो है ना रिड्यूस भी कर लेती है और जो जो कर रहा होता है ना उसका इंटरेस्ट और ज्यादा हो जाता है सही। कि ताकि वो इजीली जो है ना काम हो जाए। अब देखो हम साइकोलॉजिस्ट है, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास जो है ना अभी ये टूल्स है, हमने स्टार्स उठा लिए, हमने टोकन इकोनॉमी की एक टेक्निक इस्तेमाल कर ली, ठीक है, इस तरह से। तो वो जो है ना उसको चिल्ड्रन को जो है ना मतलब वो करता है, उनकी एनर्जी को भी वो जो है ना वो करता है, इंक्रीज करता है कि ताकि इससे ऐसा होता है कि वो जो एंजाइटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, एनर्जी होती है ना इंक्रीज हो जाती है। और तो इसमें ये पता है इस क्या तरह होता है फरिया, ये तुमने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। इस पे मुझे एक पॉइंट याद आया कि जो बच्चे रेस्टलेस होते हैं ना, जो हाइपर एक्टिव होते हैं, उनके लिए कहा जाता है उनको इतना थकाओ कि वो खुद ही। हाँ लेकिन ये समझना चाहिए कि जरूरी नहीं है बच्चा थक गया तो उसने अपनी वो एनर्जी जो कि सही हाँ तरीके से पॉजिटिवली वेंट करनी थी वो उसने की। जरूरी नहीं है। और आई थिंक प्ले थेरेपी और आर्ट थेरेपी इज द मोस्ट इफेक्टिव with this इफेक्टिव, uh, वेरी वेरी space इफेक्टिव। where बच्चे are able to channelize their energy and understand their feelings in a very positive way. यस। अच्छा फरिया, आर्ट थेरेपी प्ले थेरेपी दो अलग चीजें हैं या सिमिलर हैं? नहीं, दोनों अलग हैं, ठीक है। प्ले थेरेपी, हाँ ऐसा है कि टूल्स और ऐसा है कि कुछ टेक्निक्स ऐसी होंगी कि आपको वो लगेंगे यार ये तो सेम ही है, ये तो इसको तो ऐसा ही करना था, इसको ऐसे ही करना था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर टेक्निक का अपना एक तरीका होता है कि उसको इस तरह से आपको लेकर आना है, ठीक है। या ऑब्वियसली जो प्ले थेरेपी के टूल्स है हम आर्ट थेरेपी में इस्तेमाल कर ही नहीं सकते थे, और वो जो आर्ट थेरेपी के टूल्स है हम वो प्ले प्ले थेरेपी, थेरेपी में जो है ना इस्तेमाल नहीं कर सकते। आर्ट थेरेपी के टूल्स पता है क्या है? ये है आर्ट थेरेपी के टूल्स। पेंट्स, कलर्स, कलर्स, ठीक है, या पेंट्स, कलर्स हो गए आपके वो चीज। और प्ले थेरेपी के टूल्स जो है ना वो इस तरह के बलून्स हो बलून। गए आपके, ठीक है, और भी काफी सारी चीजें हैं वो जो है ना वो हो गई आपकी। तो ये इस तरह के हैं। अच्छा, और थोड़ा सा एक डिफरेंट साइड के, एज यू आर वर्किंग एज ए रिमीडियल टीचर ऑल्सो, एक तो ये बताओ कि रिमीडियल टीचर, सपोर्ट टीचर होता क्या है, उनका काम क्या होता है? और टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली विद वर्किंग विद स्पेशल नीड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, हाउ इम्पोर्टेंट रिमीडियल टीचर्स आर? रेमिडियल टीचर, देखो तो बस सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ के रेमिडियल टीचर्स की हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा वो नीड है, लेकिन हमारे पास ना रेमिडियल टीचर्स नहीं है। ये बात मैं बहुत ही ऑनेस्टली कह रही हूँ। रेमिडियल बिल्कुल। टीचर्स, ठीक है, रेमेडियल काउंसलर्स हमारे पास है ही नहीं, और हमें रेमेडियल काउंसलर्स की, रेमेडियल टीचर्स की इतनी ज्यादा नीड है कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा, रेमेडियल टीचर्स ऐसा होता है कि मैं खुद रेमेडियल टीचिंग करती हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा टूल अप्रोप्रिएट है कौन से स्टूडेंट के लिए। अगर एक स्टूडेंट आ रहा है, एक बच्चा आ रहा है, ठीक है, अगर उसको इशू है लिखने का, राइटिंग का इशू है, रीडिंग का इशू है, तो मुझे खुद ये चीज समझ आनी चाहिए कि मुझे कौन से टूल्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है उसके ऊपर। ठीक। सिर्फ आप उसके आगे किताब रख के नहीं अच्छा, कह यहाँ सकते पे ना एक करो रीड करो। मिसकंसेप्शन है कि रिमीडियल टीचर मतलब ट्यूशन टीचर। नहीं। तो क्या फर्क है? देखो, बहुत कॉमन सवाल है, ट्यूशन, और इतने ने मुझसे किया है कि जब मैं मैं ये कहती हूँ ना बात कि आपकी आपको ना अपने बिल्कुल बच्चे के अग्री लिए करती हूँ, हाँ मैं ये बात रिमीडियल अग्री टीचर हूँ। चाहिए, तो फिर वो मुझे पलट के कहते हैं अच्छा मतलब ट्यूशन टीचर रख लूं मैं कोई? तो ये थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन है जिसपे अगर तुम क्लियर कर सको। देखो ट्यूशन में क्या होता है, ट्यूशन में ऐसा होता है कि मैं खुद भी अभी ट्यूशन ऐसा है कि पढ़ा रही हूँ अलग से भी ना, तो मुझे पता हम्म। है कि
ट्यूशन टीचर ऐसी होती है कि वो लोग आए, ठीक है, होमवर्क हुआ, होमवर्क खत्म हुआ, चेक किया, वो चीज खत्म हुई और आप घर चले गए। रेमिडियल टीचर बेसिकली आता है इशू के साथ आ रहा है स्टूडेंट जो आ रहा है आपके पास, तो वो जो है ना एक इशू के साथ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, मेरे खुद के पास एक स्टूडेंट आता था, ही इज अराउंड 4 years old, ठीक है, और उसको लिखना नहीं आता था, उसको राइटिंग का बहुत इशू था। तो वो एक इशू के साथ आ रहा है कि इसको राइटिंग का इशू है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस ना राइटिंग पे वो करके ठीक करके और इसको आप ना सही करोगे ताकि हम आगे इसको स्कूल के लिए तो आई थिंक बहुत सारे लोग जो करवा एज अ सकें। रिमीडियल टीचर अपने आप को क्लेम हाँ, करते हैं, आई थिंक वो ज्यादातर जो है ना वो ट्रेंड नहीं होते। एक तो फाइन मोटर ग्रोस मोटर पे काम करने के लिए बच्चों को कैसे हेल्प करनी है, एंड आई थिंक रिमीडियल टीचर्स जो है ना वो इसमें ट्रेंड होते हैं। मैं आपसे ये भी कह रही हूँ ना कि ना रेमेडियल टीचर को ये चीज पता होनी चाहिए कि उसको कौन सा टूल कहाँ इस्तेमाल करना है। अब अगर एक बच्चा आ रहा है राइटिंग के लिए आ रहा है, तो ऑब्वियसली अगर ऐसा है कि आपको खुद को कोई वो नॉलेज है नहीं, तो आप किस तरह से उसको वो जो है ना ट्रीट करोगे। तो उसके हाथ को चलाने के लिए सबसे पहले आपको उसकी उंगलियों को चलाना ना इम्पोर्टेंट है। तो हमें स्क्रैच से जो है ना स्टार्ट करना पड़ता है, यूं फिर यूं फिर यूं फिर इसको उसके हम बाद फाइन हम मोटर बोलते हैं, इन्वॉल्वमेंट वर्किंग विद द फिंगर्स। बिल्कुल। तो बिल्कुल यही सही। चीज होती है। तो जो है ना, तो ऑब्वियसली ट्यूशन टीचर रेमेडियल टीचर काफी अलग है। तो मैं खुद भी ट्यूशन टीचर हूँ, रेमेडियल टीचर हूँ मैं सही दोनों बात। हूँ। तो मुझे पता, तो तुम्हें ज्यादा पता होगा कि इनमें क्या फर्क है। मुझे आइडिया है कि पेरेंट्स आते हैं वो बहुत ही, सॉरी टू से, लेकिन बहुत ही सिली क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन फिर हमारा काम है हम उनको इस तरह से इस चीज की अवेयरनेस ऑलरेडी दें। मिसगाइडेड भी हमारा हैं, पता काम है। है, कहीं ना वो हाँ, बेचारे मिसगाइडेड भी हैं। वो सही बात है, उनका हमारा कंडीशन एटमॉस्फेयर है, वो ऐसे ही बड़े हुए हैं, तो उनको पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो आई मैं थिंक हम लोग इसलिए को आपसे ना, कह रही हूँ ना तुम्हें कि पाकिस्तान में, कराची में, कहीं पे भी ना रेमेडियल टीचर्स की हमें इतनी वो नीड है, लेकिन रेमेडियल टीचर्स है ही नहीं हमारे पास, और इतनी ये किसी रेयर ने बहुत होती है अच्छा वो। कमेंट किया है अभी कि नॉट जस्ट रिमीडियल टीचर्स, नॉर्मल स्कूल टीचर्स शुड आल्सो अंडरस्टैंड दी यस 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 यस, स्टूडेंट्स इशू। और वो यहाँ पे सब ये एक यही बहुत चीज है, बड़ा मसला है। यहाँ पे हम यही ना चीज एक है। दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मेरे भागते पास एक स्टूडेंट है और मैं देख रही हूँ कि उसको कुछ इश्यू है हम्म लिखने में, तो वो हम्म, तो मेरा हेडेक नहीं है, क्योंकि मैं सही तो सिर्फ बात, उसको देख पढ़ाने के लिए आई हूँ। और ट्रू फिर दैट। उसको अगर कहीं रिसोर्स नहीं मिला, तो यस, हम्म हाँ, रिमीडियल टीचर्स शुड बी ट्रेन्ड इन हम्म, सम वर्ड के रेड फ्लैग्स, उनकी फाइन मोटर, उनकी ग्रॉस मोटर, उनको डील कैसे करना है, जैसे फरिया ने कहा सही बात कि है। कौन सा टूल कैसे यूज करना और टूबा, मैं आपसे यहाँ अभी एक चीज आई है, मुझे, तो मैं आपको ये इधर कहना चाहूँ कि स्कूल्स में जो है ना ऐसा होना चाहिए कि टीचर्स के लिए इन सब चीजों की ना कॉन्फ्रेंस हो, ठीक है, है। कुछ एक्टिविटीज हो के, ताकि हम टीचर्स को सिखा सके कि अगर इस तरह का स्टूडेंट है आपके पास तो आप उसको इस तरह से लेकर चल सकते हैं। तो ये बिल्कुल चीज बिल्कुल। हेल्पफुल हो जाएगी बहुत ज्यादा उनके लिए। बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात भी, एंड यस यू आर राइट, ये चीजें हैं, बट अच्छी पार्ट भी हम्म, है कि जो मैंने देखा है कि अब स्कूल्स ने थोड़ा बहुत इस पे काम करना शुरू कर दिया है, मेंटल शुरू हेल्थ किया पे, है। हाँ, बच्चों की डेवलपमेंटल ये तो स्टेजेस है। पे, इस पे हाँ लोग बाहर हाँ, बाहर से ट्रेनर्स हायर करते हैं, लोग अपने टीचर्स को ट्रेन करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हो रही है, मगर अगेन एज यू सेड, नॉट इनफ। और ये चीज बहुत जल्दी से बढ़नी चाहिए। वही हमारा आई थिंक होपफुली एज अ टीम इस पेज से टारगेट है कि हम ये कर सकें। ठीक है, ये तो है। अच्छा फरिया, इससे पहले कि बस मैं एक लास्ट क्वेश्चन करूंगी और फिर मैं तुम्हें बोलूंगी कि तुम वो एक्टिविटीज बताओ कि क्या आर्ट थेरेपी या प्ले थेरेपी इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन में हेल्प कर सकती है बच्चों को? बिल्कुल कर सकती है। ये जो मैं टेक्निक्स आप लोगों को सबको शो करूंगी ना, ये उसी में इसका इसका आंसर जो है ना आपको उसी में आ जाएगा आप उसी में ये देखिएगा कि मैं ये इसको ये जब मैं ना इधर सबको वो करूंगी ना, शो करूंगी, तो उसी में इसका आंसर है कि वाकई ये हेल्प करता है आपके इमोशंस को, और जो है ना सेल्फ ना आपके ऊपर काम करने में आपको एक उतना अपनी एंजाइटी और अपने फियर को जो है ना
एक्सप्रेस करने में भी हेल्प करता है। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी चीज तुमने बोली। इधर मैं एक और बात पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो फरिया बार बार सेंटेंस कह रही है ना एक्सप्रेस, ये इसीलिए कह रही है एक्सप्रेस, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम लोग बच्चों को ट्रेन करते हैं कि अपना फियर, अपनी इनसिक्योरिटी छुपाओ, जी बिल्कुल एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं करो। और ये बहुत बिल्कुल गलत है, ये बहुत गलत है। हम उनकी इनसिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं इंस्टेड ऑफ उनको ये बिल्कुल। ट्रेन करें कि डील कैसे करते हैं। तो फरिया, चलो, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी। Even I am also excited to show you all these techniques. Okay, Yeah, go let's ahead. Yeah. start with the first one. Okay, देखो, balloon of anger, अगर ये दिख रहा है, ठीक है, Yeah, balloon of balloon anger. of Yeah. anger। अच्छा, इसको हम इस तरह से अप्लाई करेंगे कि अगर कोई बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल हम एक नाम लेते हैं फरीहा, ठीक है, फरीहा है ये, ठीक है, और फरीहा, आप ये सोचें कि आपको जब गुस्सा आता है तो वो कितना गुस्सा आता है, ठीक है। तो फरीहा ये सोच रही है कि उसको जब गुस्सा आता है तो इस एक्सट्रीम पे आता है। अब उसने एक चीज सोच ली कि उसको गुस्सा इस एक्सट्रीम पर आता है। अब फरीहा को जो है ना, इस जो है अपना गुस्सा सारा निकालना है। तो वो कैसे निकालेगी? थ्रू एयर, ठीक है, अपना गुस्सा सारा इसके अंदर निकाल देगी। तो फरिया ने अपना गुस्सा निकाल दिया है इसमें। ठीक है। ठीक है, अब ये सारा गुस्सा इसके अंदर है और ये फरिया खुद है। तो अगर ऐसा है कि मैं इसको पिंच करती हूँ तो ये फटेगा, फटेगा तो ये हार्मफुल हो जाएगा हमारे लिए, खुद के लिए भी और सामने के लिए, और सब लोगों के लिए भी, ठीक है। तो मैं इसको फाड़ूंगी नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनहेल करेंगे एंड आफ्टर दैट हम एक्सहेल करेंगे लाइक दिस। आप ये साउंड सुन रहे हो, ये जो साउंड आ रहा है, रिलीज ऑफ द एंगर। ये चीज जो है ना, हम लोगों को ये सिखाती है कि आप अपना अग्रेशन किस तरह से रिलीज कर सकते हो। हम लोग को ये फर्क वो जो है ना समझ आता है ना, अग्रेशन और अग्रेशन को रिलीज करना क्या होता है। तो ये और ये कितना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि जैसे तुमने कहा कि अगर हम भरे हुए बलून को अगर पिंच आप करेंगे तो वो इसको फटेगा। पिंच करेंगे तो बर्स्ट आउट हो जाएगा, और ये हमारे खुद के लिए भी हार्मफुल है और ये सामने वाले। सामने वाले के लिए भी हार्मफुल है, पेरेंट्स हो वो चाहे कोई भी हो उसके लिए भी। तो ये टेक्निक सबसे ज्यादा इफेक्टिव है अग्रेशन के लिए, है ना। अगर कोई बच्चा अग्रेशन के लिए भी और हाइपर एक्टिविटी के लिए भी, इसलिए कि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं तो ऑब्वियसली उनमें भी कहीं ना कहीं होता है एग्रेशन। तो ये बिल्कुल चीज बिल्कुल। उनके लिए भी बहुत अच्छी है। तो मैं फ्रस्ट्रेशन, एंगर। फ्रस्ट्रेशन के लिए ना अग्रेशन के लिए इरिटेशन हो रही है, सफोकेशन हो रही है, तो वो सारी चीजें आप ये भी कह सकते हो। अब ये तो मैंने खाली गुस्से का कहा है ना। अगर ऐसा है कि किसी को खौफ होता है तो आप ये भी कह सकते हो कि आप अपना जो खौफ है, एंग्जाइटी, आप उसमें निकाल लो। तो वो आप, है ना, ऐसे ऐसे करके रिलीज करोगे तो वो भी इजी हो जाएगा। तो ये हम टेक्निक इस तरह से अलग अलग इमोशंस के ऊपर यूज कर सकते हैं। बलून ऑफ एंगर इस तरह हम कहते हैं, लेकिन जो है हम इसको अलग अलग इमोशंस पे यूज कर सकते हैं। अच्छा फरिया, इस पे एक क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड टेक्निक, मगर एक क्वेश्चन है, आई थिंक ये पेरेंट्स भी पूछना चाहते होंगे, ये वो कब करें जब बच्चा यूजली जो एग्रेसिव है या फ्रस्ट्रेटेड रहता है या हाइपर है, जब वो काम हो या तब जब वो एंग्री हो? नहीं नहीं, काम होना उस टाइम ये होगा, इसलिए कि ऑब्वियसली अगर आप, मतलब एक चीज है ना, कॉमन सेंस से, अगर एक बच्चा गुस्से में है तो ऑब्वियसली अब उससे उस हम टाइम तो कैसे बोलेंगे आपको आओ ये बलून उनको फुलाओ, काम अपना गुस्सा करना इसमें डाल दो? पड़ेगा। सही बात है, इस तरह तो नहीं होगा ना। तो ये गुस्सा रिलीज करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर ये रिपीटेडली होती रहती है ना, तो ये होगा, है ना, रिड्यूस हो जाता है एंगर, और ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। ये तो मैं भी ट्राई करूंगी अपने लिए। बिल्कुल बिल्कुल, समटाइम मैं भी कर लेती हूँ। हाँ, तो ये बच्चों के लिए आई थिंक ये हम बड़े लोग भी कर सकते हैं, जब मदर्स हम भी कर थक सकते हैं, जाती है बिल्कुल ना, बिल्कुल। इमोशनली ड्रेन्ड हो जाती हैं, तो वो ये कर सकती हैं।
तो ये हम कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है वो है कलर योर लाइफ। आई थोड़ा सा, थिंक दिस हाँ, कलर योर लाइफ, ओके। या ठीक है। अच्छा, कलर योर लाइफ में हम क्या करेंगे सबसे पहले। ओके, ये मैंने यहाँ कुछ बनाया, आई होप कि आप लोगों को ये दिख रहा है। थोड़ा सा और साइड में कर लो, ऑन द अदर साइड। ऐसे, या जैसा कि अगर ये आप लोगों को समझ आ रहा है तो ये हमारी लाइफ है पूरी की पूरी, और इसमें हमारे इमोशंस लिखे हैं। ठीक है, या कि ये जो है ना हमारे सारे इमोशंस है और ये हमारी वो लाइफ है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कलर्स निकाले। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है एक कलर निकाला, रेड कलर। ठीक है, और ये रेड कलर के मैं उस बच्चे से कहूंगी कि आप ये बताओ कि ये आपकी वो लाइफ है, और इसमें तो है अगर एग्रेशन है, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप कौन सा कलर उस पे करना चाहोगे। अक्सर ऐसा होता है सुबह, अक्सर ऐसा होता है कि ना ये लोग ना रेड कलर ही उठाते हैं। ठीक है, तो अच्छा, बिकॉज हम उनको उनको सजेस्ट नहीं कर सकते कलर, वो कलर अपनी मर्जी नहीं से नहीं नहीं उठाएंगे। नहीं नहीं, वो खुद उठाएंगे, इसलिए कि हमें तो खाली इतना समझना है ना कि ये उनके इमोशंस के साथ कहाँ अटैच हो रहा है, तो वो इसी तरह से अपने इमोशंस को ना एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये जो है ना, ये देखो आपका आंसर आ गया है ना इसमें। ये जो है ना हेल्प करता है ना उनके साथ, चिल्ड्रन के साथ, कि इस तरह से है जो ना अपने इमोशंस को जो है ना कि वो एक्सप्रेस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल कलर उठाया रेड, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ना रेड ही उठाते हैं एग्रेशन के लिए। ऐसा ही हुआ, और मैं खुद भी जो है ना रेड ही उठाऊंगे, इसलिए कि हम लोग को याद है, हम ऐसा होता है जो ना गुस्सा हो जाते तो हम गुस्से में रेड हो जाते हैं कि लाल हो रहा है गुस्से में, बिल्कुल इस तरह से, तो वो रेड उठाते। तो आपने रेड उठा के कलर यहाँ कर लिया। मैं ये कलर कर लूं, फिर मैं आपको बिल्कुल दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से हो जाएगा। सही ठीक सही। है, फिर इसी तरह से अलग अलग वो कलर्स उठाएगा। सही है, फॉर अच्छा, वो एग्जाम्पल सेम उसने कलर पिंक यूज नहीं उठा कर लिया। सकता? अच्छा, सेम कलर सेम यूज कर कलर हो सकता है? सकता है, वो यूज हो सकता है, ठीक है, उसके ऊपर है। अब फॉर एग्जाम्पल इधर है हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस लिखा हुआ है, तो मैं या जो है पिंक के लिए हैप्पीनेस उठाती हूँ, और ये पूरा मैं इसको जो है ना इस तरह से कलरिंग कर दूंगी। तो ये फिर आपकी वो लाइफ है ना, ये पूरी कलर हो जाएगी। हो तो जाएगी। या आपको ये चीज समझ आएगी कि उसको मतलब कौन सा कलर जो है कौन से इमोशंस के साथ अटैच हो रहा है। ये थेरेपी ना, इसके लिए आर्ट थेरेपी और प्ले थेरेपी हम एक साथ ही जो है ना कह सकते हैं, बिकॉज देखो ये है टेक्निक, है टेक्निक आर्ट थेरेपी की भी हम कह सकते हैं, बिकॉज कलर्स के साथ इमोशंस को निकालना वो हम आर्ट थेरेपी में ही कर सकते हैं बेसिकली। सही। अच्छा ठीक है, परिया, जैसे ये आर्ट फॉर थेरेपी। इंस्टेंस मैंने ये एक्टिविटी की अपने बेटे के साथ, और मैंने देखा कि 3-4 बार करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि कुछ रीजन्स में उसके स्पेसिफिक कलर्स हैं, उसने चेंज नहीं किए। तो हाउ फिर विल आप, दैट हाँ, हेल्प मी अंडरस्टैंडिंग हिज इमोशंस? हाउ विल दैट हेल्प? फिर आप उससे क्वेश्चन करो। हम्म। तेरा है जो ना आपने ये इन है ना एक कलर आपने इधर भी किया, यहाँ भी किया, इधर भी किया है, तो हम्म। क्या आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये कलर आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है। इस तरह से ऑब्वियसली कि बच्चे अपने खुद के पेरेंट्स के साथ, अपनी अम्मी के साथ ही चीजें करते हैं शेयर, तो वो ऑब्वियसली आपके साथ करेगा कि हाँ ऐसा हो गया, और ये कलर इस तरह से जो ना इतनी इंपॉर्टेंस रखता है कि आपको पता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है ना, मैंने इसीलिए हर जगह ये कलर डाला है। समटाइम्स इस तरह से बच्चे बोलते हैं, है ना, आपको पता है ना कि मैं इतना रोता हूँ ना रात में, मुझे बहुत खौफ आता है ना, मैं इसीलिए ये जो है ना, ये जो है ना कलर है ना, यहाँ 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 मैंने यूज किया है। तो वो जो आंसर्स आते हैं ना, वो ये वाले आंसर्स आते एंड पता है, इट्स अनबिलीवेबल कि बच्चे हैं। एक तो क्या क्या चीजें याद रखते हैं और क्या यस। क्या चीजें कैच करते हैं एनवायरनमेंट से। आई टेल यू, मैं इसमें मैंने पढ़ा जरूर है प्ले थेरेपी, लेकिन मैं ट्रेन नहीं हूँ। लेकिन मुझे याद है जब हम शिफा हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहे थे, तब प्ले रूम में एक बच्चे ने
बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी कि उसने एंगर को येलो से पेयर अप किया था और बार बार येलो से किया था। तो हमने उनसे पूछा कि व्हाई डू यू कीप कलरिंग येलो ऑन द एंगर पोर्शन। हाँ तो हाँ कहता था ठीक कि है। माय मदर फादर फाइट अ लॉट एंड द फर्स्ट टाइम आई विटनेस देम फाइटिंग माय मदर वाज वेयरिंग अ येलो ड्रेस एंड उससे उसने एंगर को हाँ इतना कि अटैच ही कर लिया। हेटेड येलो कलर व्हेन एवर ही यूज्ड टू सी येलो कलर उसको गुस्सा आता था। तो हाउ और ये चीज अनकॉन्शियसली ये जो थेरेपीज हैं अनकॉन्शियसली बच्चों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं टू एक्सप्रेस। और आई थिंक ये एक्टिविटी फरिया इतनी ब्रिलियंट है। आई एम ग्लैड तुमने ये शेयर की। इट्स अ ब्रिलियंट एक्टिविटी। ये मुझे करनी थी शेयर, ये मुझे करनी थी क्योंकि ऑनेस्टली सच्ची बताऊं कि मैं खुद भी ये करती हूँ, अभी भी मैं करती हूँ। हम भी ये चीज कर सकते हैं ऑब्वियसली, बिल्कुल। अभी अगर हम किसी से भी कोई चीज आई थिंक ये एक्सप्रेस अगर क्वारंटीन करनी टाइम हो इतना तो मैं, अच्छा है फैमिली मेंबर साथ बैठ हाँ जाएं ये एक्टिविटीज करें। तो ये चीज व्हाई नॉट। अच्छी है, तो मैं इसीलिए ये एक्टिविटी मैंने। अब मैं थर्ड एक्टिविटी बता देती हूँ आपको। या ओके, द थर्ड वाज अनेस्ट पोस्ट कार्ड एक्टिविटी। ओके। ये भी आपकी आर्ट थेरेपी की है। आर्ट थेरेपी की मोस्टली तो मैंने इसीलिए उठाई है क्योंकि इजीली इसका वो जो सामान होता है ना वो ना अवेलेबल होता है हमारे पास, कलर्स वगैरह। ठीक है, तो ये मैंने ज्यादातर इसीलिए उठाई है। अच्छा, आपने एक लिया पेपर लिया और इसका कार्ड आपने जो है बना दिया, पोस्ट कार्ड। ठीक है, ये मैंने पेपर लिया है, ठीक है, और इसका मैं पोस्ट कार्ड जो है वो बना रही हूँ यहाँ पर। अब ये बन और ये गया एक कोई भी पोस्ट कलर का कार्ड। पेपर हो सकता है। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो ठीक। सकता है, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू हिम और हर, कि वो जो मतलब उसको अच्छा लगे। ठीक है, ये पोस्ट कार्ड आपने बना दिया। अब आप अपने बच्चे से ये बोलोगे कि आप मुझे ये बताओ कि आपका जो है, कल आप रात को रो रहे थे, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने आपसे ये बात शेयर की कि मैं कल रो रहा था रात को, मुझे जो है ना वो नींद नहीं आ रही थी, तो आप उसको बोलोगे कि ना कल आप रो रहे थे, क्यों रो रहे थे? तो उसने आपसे कहा कि मुझे बहुत खौफ आ रहा था, है ना, अंधेरा इतना था तो मैं सो नहीं पा रहा था। तो आप उसको कहोगी कि अगर आपको अपने अंधेरे से कुछ कहना है तो आप कैसे कहोगे? आप एक काम करो, आप उसको ये पोस्ट कार्ड ना सेंड कर दो। तो आप जो है ना फिर एक काम करो, सबसे पहले इसके ऊपर अगर आप कुछ ड्रॉ करना चाहोगे अंधेरे को लेके, सोचो कि वो अंधेरा कैसा था, तो यहाँ पे क्या आप वो जो है ना हम्म। बनाओगे? फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ भी चीज इधर बना ली, सही है, फिर आप उसको कहोगी कि यहाँ पर आप उसको पूरा एक लेटर आप लिखो, अगर आप लिख सकती हो तो जो है ऐसा है कि वो खुद आपसे कहेगा और आप लिख लो, अगर ऐसा है कि वो खुद लिख सकता है बच्चा तो वो खुद से भी लिख सकता है। तो इससे ये होगा सही। कि ये जो, तो इससे ऐसा होगा कि आपकी सारी इतनी एंजाइटी है, आपका फियर है, आपका एक होता है ना जो हर्टफुल इमोशंस होता है कि वो रात को रोना, तो वो चीज हम्म, ना इसके ऊपर आ जाएगी सारी, सही। ये चीजें। फिर आप उससे ये कह सकते हो कि ना ठीक है, अभी आप रात को सोगे ना तो आप अपने कमरे में जो है ना इसको ना आप रख लेना, तो वो जो अंधेरा आएगा ना तो वो आके इसको पढ़ लेगा और वो चला जाएगा। तो इस हम्म। तरह से हम बच्चे को जो है ना इस तरह से उसको कह सकते हैं, और इसी तरीके से वो अपने आप को और अपने उसको इमोशंस को, एंजाइटी को, फियर को रिलीज कर ले। तो ये सबसे एक्सेलेंट ज्यादा प्रिया, ये इफेक्टिव इतनी अच्छी टेक्निक है। अच्छी और है ना। आजकल मैं सेल्फ रेगुलेशन एक्सेलेंट। और पता है मैं आजकल सेल्फ रेगुलेशन के बारे में बहुत पढ़ रही हूँ। तो हम जो हमारा ना कल्चरल एक प्रॉब्लम है हमारे कल्चर में, हाँ, वो ये कि हम बच्चों को ना सेल्फ रेगुलेशन जो है ना सिखाने के बजाय हम आउटसोर्स करना सिखा देते हैं। तुम्हारे बिल्कुल कमरे में बिल्कुल। कल भूत आया था ना, मैं आऊंगा, मैं भगा दूंगा, तुम देखना फिर दोबारा नहीं हाँ आएगा। बिल्कुल। अब बच्चे ने क्या किया कि खुद उसको डील करने के बजाय मेरे अब्बू हाँ डील कर लेंगे, मेरी मामा डील कर लेंगी। अब इससे क्या हुआ कि इस टेक्निक से जो भी फियर था बच्चे ने खुद हैंडल किया। उसने सिर्फ खुद सेल्फ रेगुलेट किया इंस्टेड ऑफ आउटसोर्सिंग इट। ये एंड मैंने दिस इज बहुत ज्यादा वो जो है ना रिसर्च करने के बाद
खुद से सोचने के बाद ये मैंने बनाई है, बिकॉज और ऑब्वियसली तुमने बहुत अगर अच्छी एक चुनी है, बच्चा, बहुत जनरल है, एंड आई थिंक कि ये करने में बहुत ये मैंने एक तो इसीलिए चूज इजी भी किया होगा, है। हाँ, इफेक्टिव भी होगा, और बहुत हम्म, इजी टू इम्प्लीमेंट है। ये मैंने इसीलिए चूज किया है कि ताकि पेरेंट्स को भी हेल्प हो सके कि वो खुद आइडेंटिफाई कर सके कि उनके खुद के बच्चे को कितने इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा हम्म। होता है कि obviously हमको पता ही नहीं होता कि हमारा बच्चा इस तरह से सफर और कर हम रहा है। सीरियसली नहीं लेते। बच्चा आता हाँ, है, हम उसको अम्मी ये है, सीरियसली अम्मी नहीं ये है, अरे भाई तुम चुप रहो, लेते। तुम्हें मैं समझा चुकी हूँ कि ऐसा कुछ हम्म, नहीं होता, तुम बार बार ये चीज को ले आते हो। और हम रियलाइज नहीं कर सकते हैं कि अब अगर अगर फॉर इंस्टेंस आपके साथ कुछ ऐसा हो और आपको कोई सुनने को रेडी ना हो, हाउ सही विल यू बात है। फील? आपको हर ये कोई बोलता रहे ये झूठा है। हम बच्चे छोटे होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, वो उनका कंट्रोल नहीं है, वो वैसे ही है। वो अगर अपने डर को एग्जैजरेट कर रहे हैं, करने दें, आप समझें, आप उनको चांस तो दें, बी द ईयर सही, दे वांट टू बी। और यहाँ पेरेंट्स बिल्कुल सुनने सही को बात तैयार है नहीं। सुबह। मैं खुद यही सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज अपने बच्चों को जो है ना, बिल्कुल इस तरह से नहीं कर दे कि तुम रो क्यों रहे हो, तू क्या हो गया हम्म। रो रहे हो, लड़के इस होके तरह। रो रहे हो, लड़कियों की लड़के तरह रो होके रहे हो। ये यहाँ तो हमने कॉन्सेप्ट लड़कों को होना सिखा बहुत दिया गलत कि है। तुम रो नहीं सकते, तुम एक्सप्रेसिव नहीं हो हाँ, सकते, क्योंकि तुम एक, ये जेंडर इशू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत, अभी भी इसका भी अगर हम इसको उठाएंगे ना तो ये बात बहुत वहां तक जाएगी। तो अब मैं आपको एक आखिरी टेक्निक बताती हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कहीं खत्म हो गई मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिरी क्यों है, और होनी चाहिए थी। आई एम सो मच और होनी चाहिए ना। इनटू इट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम अगला सेशन ना सिर्फ इसी पे करेंगे, यस ओनली यस, टेक्निक। यू हैव टू डेफिनेटली। ये ना रेमेडियल टीचिंग की टेक्निक है इसका। अच्छा हाँ, मैं पहले इसका नाम बता दूं। फिंगर पेंटिंग। फिंगर पेंटिंग हम करते हैं, वो जो हम बात कर रहे थे ना राइटिंग की, के जिसको लिखना नहीं आ रहा, ठीक है, उसकी फिंगर्स के साथ हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं काम, ठीक है। तो ये ना रेमेडियल टीचिंग की जो है टेक्निक है। तो सबसे पहले हमने ये ट्री बना दिया, ठीक है, एक पेपर पे, सही है। अब हम बच्चे को बोलेंगे, एक मिनट पे, अब हम बच्चे को बोलेंगे कि ये पेंट्स है, और आप जो है, आप जो है ये पेंट्स है, पेंट्स हम कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पेंट्स हैं, और ये पेंट्स को जो है आप, ये जो ट्री है ना, आप इसके ऊपर लाइक, देखो लाइक दिस, यूं सही। अपनी फिंगर्स के साथ जो है ना, फिर पिंक वाला आ गया लाइक दिस, और कलर्स ठीक बच्चे है। खुद चूज करेंगे। कलर्स खुद चूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो एक मिनट, ये ऐसे, सही, मतलब ठीक है। फिंगर टैपिंग से करना है। फिंगर टैपिंग से जो है ना आपको इस तरह से अलग अलग कलर, और अच्छा इसके साथ साथ आप उनसे ये भी पूछ सकती हो कि आप ना रेड कलर इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको ऐसा आपको वो लग रहा है कि जिससे सवाल से सवाल निकालना, कि ताकि बच्चा खुद ही चीजों को जो ना प्रेस एक्सप्रेस कर करें, दे इसके बोले इस साथ बारे साथ, में। क्योंकि यस एक यस। कंसंट्रेशन की भी एक्टिविटी हो जाएगी कि उसका कंसंट्रेशन भी है, ठीक है, फोकस, वो देखिए ना, काम भी इससे कर रहा एक है। साथ ये बहुत सारी चीजें टारगेट कर रहा है: एक्सप्रेस, फोकस, फाइन मोटर्स, हम्म, ये सारी ये चीजें, चीजें, कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे स्टे सुबह अप। सच्ची बताऊं तो ये मैंने खुद अपनी रेमेडियल टीचिंग से ही ये वाली टेक्निक सीखी है। ये मैंने खुद, एक बार ऐसा ही हुआ था कि मैंने इसे ट्री एक लेकर बना लिया था, और फिर उसको स्टूडेंट को तो मैंने कहा, और फिर उसके बाद आई रियलाइज कि यार ये तो बहुत इफेक्टिव है, और इसको मुझे वाकई करना चाहिए इस तरह के बच्चों पे, कि ताकि ये वाकई फुल वेरी, हो इट्स जाए। ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच तूबा। तो ये मेरी 4 टेक्निक्स है। इसके अलावा और भी काफी ज्यादा टेक्निक्स है। हम बच्चों पे इतना अच्छा काम कर सकते हैं तूबा। हम सब एक साथ अगर होकर करेंगे तो काम बहुत अच्छा होगा, ठीक है, वो नो डाउट। बिल्कुल हम बच्चों पे बिल्कुल। बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे समझने की वो देर है कि हमें कितनी वो नीड है कि नहीं है। ऑनेस्टली मुझे अब भी बहुत अफसोस होता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी का पाकिस्तान में ऐसा जितना स्कोप नहीं है कि जितना होना चाहिए, ठीक है, कि बिल्कुल जितना अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, और भी उस पर है, तो चाइल्ड साइकोलॉजी का पाकिस्तान में इतना स्कोप है नहीं। तो मुझे थोड़ा बहुत अफसोस होता है, लेकिन ये कि एक अच्छी बात है, अभी आपने ही कहा था कि ना आजकल के जो स्कूल्स हैं वो इस चीज पर जो है ना आ रहे हैं, वो
काम भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज भी अच्छी है कि है ना, एक ये भी हेल्प हो जाती। तो हमें स्कूल्स के साथ जो है ना, मतलब एक होता ना कि ना एक साथ होकर उनकी टीचर्स के साथ अगर हम इस तरह के बच्चों की हेल्प कर सकें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, और ये हमारा बिल्कुल काम है। बिल्कुल ये बिल्कुल। हमारा काम है, और मैं तो खुद सोचती हूँ कि मैं तो हूँ ही इसी के लिए ऑनेस्टली। नहीं, what you are doing फरिया is marvelous. I think तुम थैंक जो यू। मैजिक, ये एक मैजिक है। I थैंक think यू। हम लोग बहुत लकी हैं। मतलब तुम हो, मैं हूँ, हम जो सारे हम पैनल बिल्कुल, हम एटलीस्ट, हमारी जब पूरी मुझे टीम याद है। है जब मैंने ये पेज बनाया था और हाँ मैं हाँ। सोच रही थी और मैंने लिस्ट बनाई थी कि अगर एक बच्चा है उसको कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट से एरियल व्यू से देखा जा सकता है, तब मैंने सोचा था ओके, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक बिहेवियरल थेरेपिस्ट, एक ये वो, बात है। तो फिर आर्ट थेरेपी भी इतनी इम्पोर्टेंट है। हम लोग इसको बहुत, बहुत बहुत अब इम्पोर्टेंट है। इवन समटाइम्स मुझे लगता है कि स्कूल में आर्ट सब्जेक्ट इतना अच्छा तरीका है टू एक्सप्रेस आउट थ्रू कलर्स, क्योंकि कलर बिल्कुल। थेरेपीज बहुत इफेक्टिव हैं। आप कुछ लोग क्या बहुत करते हैं, इफेक्टिव अपने है। कमरे के कलर्स वॉल के चेंज कर लेते हैं एंड दे हैव सच a huge effect on them, even if they're not doing anything, just looking at the color make them feel calmer, make them feel काम। happy। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। ये सब वही बात है जैसे तुमने मैं कहा, हमें समझने की देर है। हाँ, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ तुवा, और मैं इस चीज को बहुत आई हैव अच्छी तरह सीन योर समझती हूँ। वर्क, ब्यूटीफुल, थैंक यू। बहुत अच्छा काम करती मेरे लिए थैंक्स अलॉट। मेरे लिए आर्ट जो है ना, आप सोच भी नहीं सकती मेरे लिए आर्ट क्या है। हो। तो मैंने फिर इन्हीं चीजों को जो ना अडॉप्ट किया, ठीक है, अपने आप को पहले पूरा इस तरह बनाया, फिर इन चीजों को अडॉप्ट किया, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अब जो है ना कुछ ऐसा करूं कि उससे किसी की हेल्प हो सके। तो ये चीज खुद के लिए भी इतनी सेटिस्फाइंग फाइन होती है बिल्कुल। होती है कि बंदा जो है ना बहुत मतलब इत्मीनान फील करता है कि हाँ, अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। एंड आई एम बिल्कुल। सो थैंकफुल टू यू कि तुमने मुझे इस तरह से इस टीम का हिस्सा बनाया। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुझे याद है जब मैंने अपने पैनलिस्ट का सोचा था, तब तुम प्ले थेरेपी जब मैंने लिखा था अपनी लिस्ट में, आई यू वर द फर्स्ट नेम दैट केम टू माय माइंड, दैट एज एन आर्ट थेरेपी एंड प्ले थेरेपी आई विल डेफिनेटली डेफिनेटली आस्क फरिया टू जॉइन मी, एंड आई एम ग्रेटफुल कि तुमने हाँ कहा, एंड आई एम ग्रेटफुल कि तुमने इतनी अच्छी टेक्निक्स अभी हमें बताई हैं। एंड थैंक्स डेफिनेटली अलॉट। फरिया, इन द फ्यूचर आई वुड लाइक कि तुम ज्यादा शो कर सको ऐसी बिल्कुल बिल्कुल, टेक्निक्स जो मैं जरूर इजी टू करूंगी। अप्लाई हो, घर पे पेरेंट्स क्वारंटीन टाइम में अपने बच्चों के साथ कर सकें, क्योंकि बच्चे भी फ्रस्ट्रेटेड हैं। और आई सही आई बात एम है। क्वाइट श्योर तुम्हारे पास ऐसी भी टेक्निक्स होंगी जो फैमिली साथ में कर सके। हाँ हाँ, है बिल्कुल है, सबके साथ में भी है। लेकिन अब ना अभी ऐसा करेंगे कि हम एक सेशन ऐसा करेंगे कि हम खाली टेक्निक्स ही बताएं उसमें, ठीक है। अब बिल्कुल ये तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्टरी था, तो थोड़ा बहुत हमने आपस में जो ना वो शेयर कर लिए पॉइंट्स ना। अभी जो हमें करेंगे ना उसमें हम सिर्फ टेक्निक्स ही रखेंगे, तो वो काफी सारी हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल 15 हो सकती है, 20 भी हो सकती है, तो कोई इतना मसला नहीं है। तो मैं फिर उसी हिसाब से लिख लूंगी, और फिर हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले सेशन में जो है ना हम टेक्निक्स का सेशन ही करेंगे एक पेरेंट्स के बिल्कुल साथ मिलकर। बिल्कुल। एंड आई एम क्वाइट श्योर आफ्टर दिस लाइव वीडियो लोग बहुत ज्यादा अप्रोच करेंगे तुम्हें, और करना भी चाहिए, तुम इतनी ब्रिलियंट हो। एंड थैंक यू, आई एम, थैंक यू, एंड मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तुम्हारा टैलेंट पहुंच पा रहा है थैंक उन यू। लोगों तक जो लोग जरूरतमंद हैं, बच्चे, टू एक्सप्रेस themselves their emotions in a healthy way। बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, बात नहीं करना चाहते, बिल्कुल और हम बिल्कुल क्या करते हैं, हमारी आदत होती है कि हम बच्चों को उनकी दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हमें ये बिल्कुल समझना चाहिए कि हमने उनकी दुनिया में जाना है, इंस्टेड ऑफ बिल्कुल। देम पुलिंग आउट। हमारी अभी रियलिटी वैसी ही इतनी हार्श है, तो थोड़ा हम ही बहुत खुशी ले लें उनकी दुनिया में जाके। बिल्कुल। अब ये जो टेक्निक्स है, आप यकीन करो, आप ये खुद भी करोगे ना तो आपको लगेगा यार मैं तो करूंगी, वाह। बिल्कुल मैं करूंगी, और मैं सबके साथ करूंगी। एंड आई एम क्वाइट श्योर बिल्कुल कि दिस बिल्कुल। विल हेल्प इनिशिएट डायलॉग ऑल्सो। जो मिस ऐसे कम्युनिकेशन और हाँ कम्युनिकेशन बैरियर्स है फैमिलीज में, पार्टनर्स हाँ में, बिल्कुल। एंड आई थिंक दिस विल एक्चुअली हेल्प देम इनिशिएट द डायलॉग।
क्योंकि आपने समझना है कि मैंने एक पोस्ट भी डाली थी अपने पेज पे कि हाउ पेरेंटिंग, डिफरेंट पेरेंटिंग हाँ, स्टाइल्स ये कैन आपने डाली थी, डिस्ट्रॉय। बिल्कुल डाली। तो आई थिंक ये सब चीजें जो है ना, डायलॉग, कम्युनिकेशन, बिल्डअप, ये फैमिली थेरेपीज कैन डेफिनेटली हेल्प इन दैट। यस, ये तो है, बिल्कुल है। और ना वाकई आप ही टेक्निक सबके साथ कर सकते हो, ठीक है। अग्रेशन की वो जो वो जो है ना, आपको तो मैंने कहा था कि वो आप कर सकते हो। एक ये पोस्ट कार्ड की जो एक्टिविटी है, ठीक है, आप ये सबको कह सकते हो, है ना। अगर हम सबका कोई ना कोई इस तरह की ना एंजाइटी होती है और फियर होता है, तो हम ये कह सकते हैं, है ना, आ जाओ, आज हम सब अपनी एंजाइटीज और अपने फियर्स को चैलेंज करते हैं कि अब वो जो है ना हमारे पास ना कभी नहीं आएगा। तो इस तरह से हम सब साथ होके भी कर सकते हैं, ये फैमिली भी एक साथ बैठ के कर सकती है अच्छा ये फरिया, चीज। एक आखिरी चीज बस मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, ये मेरा एज अ मदर सवाल है। लाइक मेरा बेटा जुरैन इज नॉन वर्बल, तो हाउ मच दीज एक्टिविटीज कैन बी हेल्पफुल फॉर हिम? देखो, सबसे पहले तो ये एक्टिविटीज की इतना अगर आपको भी समझ आएगा तो ये उसके इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, कि ये आपको भी हेल्प करेगा। सही है कि आप किस तरह से जो है ना, वो किस तरह से जो है ना अपने इमोशंस को, अगर कोई ऐसा इमोशन है कि वो आपसे एक होता है ना, वो कर नहीं रहा शेयर, तो वो ये जो जो एक्टिविटी है ना, अगर आप उससे कहोगी, अब फॉर एग्जांपल मैं ये पोस्ट कार्ड एक्टिविटी उठाऊं, अगर आप उसको ये बात कहोगी कि देखो ना, अगर अगर आपका कोई ऐसा फियर है, ठीक है, या कोई ऐसी चीजें है जो आपको तंग कर रहा है, ठीक है, इसलिए कि हम लोग इस तरह के ना अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के साथ, ठीक है, कि कौन सी ऐसी चीजें है जो आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, तो है ना, हम एक काम करते हैं, उसको जो है ना इसके अंदर देख लेते हैं और उसको चैलेंज करते हैं कि अब वो आपके पास कभी भी नहीं आएगा। तो एटलीस्ट ऐसा होगा कि ना, राइटिंग के थ्रू, कलर्स के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू आपको इतना समझ आ जाएगा कि हाँ यार, कि इसकी ये एंग्जाइटी है और ये अग्रेशन है और ये खौफ है कि जो इसको तंग कर रहा है, तो मैं अब इसके साथ इसके ऊपर इस तरह से काम कर सकती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सबसे फरिया पहले फॉर गिविंग सो मच मोस्ट वेलकम। टाइम। हाँ बोलो, बोलो, बोलो। मैं सिर्फ एक चीज यहाँ कहना चाहती हूँ, सबसे पहले हमें हमें अपनी खुद की ना, वो जो है ना औलादों की इनसिक्योरिटीज समझनी पड़ेंगी कि उनकी Yes. इनसिक्योरिटीज क्या है। अगर हम वो ही नहीं समझ रहे हैं तो कुछ इसमें फिर कोई फायदा तो नहीं है ना। तो ये जो टेक्निक्स हैं, कलर्स और ये सब है, सबसे पहले हमारी इनसिक्योरिटीज निकालेंगी, अभी हम उनसे पूछ सकते हैं ना कि अगर ये इशू है तो इसको हम यूं सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हाँ। आजकल के जो पेरेंट्स है ना, वो हर चीज ना गुस्से से करते हैं डील, ठीक है, चुप हो जाओ, ऐसे नहीं करो, क्यों हो गया ऐसा, ठीक है। तो ये चीज, इससे बेहतर है कि अगर हम इस तरह से टेक्निक्स करके कि या आराम से उनको बिठाकर बिल्कुल। एक होता है कम्युनिकेशन कर लें, तो और वो इस ज्यादा बारे में बेहतर। हमने मैंने लाइव सेशन में लॉरियन जो आई थी उनके साथ भी हाँ, बात की थी कि उनके अगर साथ बात की पेरेंट्स आपने, अग्रेसिव हैं, तो जो बच्चा बिल्कुल। ऑलरेडी एग्रेसिव है, ऑलरेडी एंग्शियस है, ऑलरेडी हाइपर है, उस पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमें on the other side, we are mature, we are older, we need to understand that बिल्कुल let's बिल्कुल। not react to the already reaction। हम्म। एक रिएक्शन है, हम उस पर रिएक्ट करें जो कि उनको हेल्प नहीं करेगा। तो we need to calm down and be grounded in ourselves. Obviously that is what we are going to make our children learn as well. बिल्कुल, ये तो है, true that। Chalo, thank you so much Faria for giving so much time, and You're most I will definitely ask you to share more activities. more। कुछ कहना चाहोगी in the end, or then I'll wrap up? एट द एंड में ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी, कि जो है कि हाँ, कि आपने मुझे चांस वो दिया कि मैं इस तरह से एक्टिविटी शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ, सबके साथ। तो ये चीज तो बहुत अच्छी रही, थैंक्स अ लॉट। काफी चीजें जो है ना खुली समझ में आ गई, ठीक है, तो वो चीज ज्यादा अच्छा है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी पेरेंट्स को, सबको ज्यादातर, कि प्लीज अपने बच्चों की जो इनसिक्योरिटीज हैं, उनके फियर्स हैं, उनको समझने की कोशिश करें, वो ना कि उनके ऊपर गुस्सा करके उनको
दबाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप खुद ही अपने बच्चे को नहीं समझते तो वो फिर क्या होता है, फिर किसी और के पास किसी गलत हाथों में चले जाते हैं, और इसी तरह से फिर जो है ना अभी कुछ और Either they are इशू हो going गया, to start trusting people they should not trust, बिल्कुल बिल्कुल or they बिल्कुल, will never trust anyone in their life. इन देयर लाइफ, ट्रू दैट, तो वेरी बच्चों का ये बहुत डैमेज हो जाएगा, और यही वो बात है कि डेवलपमेंटल स्टेजेस में हमने ये चीजें पकड़नी है, हमने उसको रिजॉल्व पकड़नी करना है, जो कि हो सकती हैं, होपलेस सिचुएशन नहीं है। हर नहीं है, बच्चा ट्रू एक दैट, अलग तरीके का होता है। किसी ने कमेंट में भी लिखा था नॉट ऑल फिंगर्स आर इवन सेम, तो हमने इसी पर्सपेक्टिव से चलना है, और उनपे चीजें थोपनी नहीं है, अपनी इनसिक्योरिटीज को खुद ही रिजॉल्व करना है। वो बच्चा ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कर रहा है, सही एडजस्ट हो बात रहे है, हैं इन द एनवायरनमेंट, और ये क्वारंटीन भी चल रहा है, और एक बिल्कुल रैट सही रेस बात, चल ये रही है फॉर गेटिंग द क्वारंटीन की ग्रेड। वजह से और मोस्टली बच्चे जो है ना वो इरिटेट भी हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, तो ये जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, तो ये उनको हेल्प करेंगी, और इंशाल्लाह हो सका तो मैं और भी एक्टिविटीज जो है ना वो शेयर कर दूंगी, इंशाल्लाह, डेफिनेटली। चलो, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच करिए, अपना ख्याल रखो। सेम टू यू, थैंक्स अ ओके, लॉट, नो प्रॉब्लम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। So we had beautiful Faria with us, and I'm quite sure कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि वो कितनी talented है। Those who want to reach out to her, please do. वो आपको definitely help कर पाएगी, and inshallah on this page I'll ask her to come back again with more therapies, with more activities. So you would be able to do it at home right now and help children जो कि already aggressive हैं, frustrated हैं, घर में बैठे बैठे, बाहर जाने को नहीं है, to channelize their energies in a positive way. I hope this session would be helpful, और आगे भी अगर जो बाद में देखें, they have any question, have any comment, please just leave it down the video, and Faria and I will get back to you. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.